Well, good morning, everyone, once again. And today we'll proceed further. In the last class, what we have discussed was something like adverse selection or the Lemons problem that may pertain because of the asymmetric information. And we have seen in our last class that how the symmetric information, presence of symmetric information helps a seller, or you can say the market, to reach its optimal solution, and how the presence of, or you can say the existence of, asymmetric information leads to the Lemons problem or adverse selection problem in the financial market, especially taking the case of banks as a financial intermediary. And we have discussed the case further, and we have seen what are the implications and why those implications are there. So this was all we have done in our last class, and today we are supposed to proceed further from here. Now we all are aware what is asymmetric information and how does asymmetric information leads to adverse selection. Now the question is, if there is the existence of asymmetric information in the financial market, especially in case of banks, if we see, we will see other examples also, but as we have discussed in our last class relating to the banking system, so now we will try to understand how the banks can overcome these asymmetric information problems, or how the banks can strategize to counter the asymmetric information problems. कि भाई जो भी कोई बैंक है वो किस तरह से असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को काउंटर कर सकता है. काउंटर करने का मतलब हाउ दे कैन डील विद दैट, हाउ, what steps they should adopt, what factors they should consider, what strategies or what kind of policies they should follow, so that there would be a minimum or minimization of asymmetric information problem or consequently the adverse selection. कि भाई ऐसे क्या वो फैक्टर्स को कंसीडर करें, और जो भी फैक्टर्स वो कंसीडर करें वो फैक्टर्स में क्या लूप होल्स हैं या किस तरह की लिमिटेशंस हैं उन पर्टिकुलर फैक्टर्स की. तो दिस ऑल्सो वी आर सपोज टू सी इन टूडेज क्लास. So today's class is about the solutions to the problem. We know that there is a asymmetric information in the financial market. We know that there is a Lemons problem which results in the adverse selection, and some other kind of problems that we'll discuss further. And now the point is how to deal with those problems. That is the agenda of today's class. I hope my point or explanation is clear what we are supposed to discuss today. Yes? Hello? All right. So let me write the heading for today's topic. The heading is you may call it something like bank strategies, bank strategies, bank strategies, strategies for countering asymmetric information. Well, that means what factors a bank must consider for overcoming asymmetric information. Yes, in the last class we have discussed what does asymmetric information means and what is the result or consequence of that asymmetric information. Can any one of you explain me what does asymmetric information means? Yes, students, can any one of you help me in recollecting what the asymmetric information is? Who is speaking, please? Let me know your name. Lalu Prasad. Lalu Prasad. So I think Lalu Prasad has explained it well, that it is the situation when the buyers and sellers have different quantum of information regarding the product that is to be transacted, isn't it? कि जिस भी चीज़ के बारे में हमें ट्रांजैक्शन करनी है उसकी
इंफॉर्मेशन जो है बायर्स को और सेलर्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम आता है, बैड बोरोवर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, यस और नो, बैड बोरोवर्स आ जाते हैं। अब बैंक के सामने क्या सवाल है, बैंक के सामने सवाल है कि भाई देखो ऐसा है कि बैंक को मालूम है कि इंफॉर्मेशन तो असिमेट्रिक है, यानी कि कौन बोरोवर ऐसा है जो कि ऑनेस्ट है और कौन बोरोवर ऐसा है जो डिसऑनेस्ट है, दैट इज व्हाट द डिस्टिंक्शन द बैंक इज ट्राइंग टू मेक, यस और नो, बैंक इज ट्राइंग टू मेक द डिस्टिंक्शन who is the honest borrower and who is the dishonest borrower, yes or no, ठीक है। now there has to be some parameters that a bank adopts, there has to be some strategy that is being adopted by the bank for distinguishing between what do you call it, the honest borrowers and dishonest borrowers। जो ऑनेस्ट बोरोवर्स हैं उनके लिए जो आपकी रीडिंग्स में उसमें अलग अलग वर्ड भी हैं, जैसे ऑनेस्ट बोरोवर्स जो है, ऑनेस्ट बोरोवर्स जो है, बोरोवर को हम बोलते हैं गुड क्रेडिट रिस्क, गुड क्रेडिट रिस्क, दिस इज द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर indicating or identifying, or you can say recognizing, or you can say for indicating, what do you call it, honest borrowers, and there is dishonest borrowers, there is dishonest borrowers, and what does bank does is what is the alternative word for this is the bad credit risk, you know, bad credit risk, that means simply we can say that here is a risk is low, risk is low, why the risk is low or negligible, or you can say the absence, risk is low or negligible, and what do you call it here, or you can say the risk is absence of risk, absence of risk, you can also treat it as, because the honest borrowers anyhow is going to repay the borrowings, whatever he has borrowed he is supposed to, he is going to repay that amount, कि जो borrower है उसने वो amount repay करना ही है, तो negligible है या absence है risk का, इसमें क्या कहते हैं कि गुड बोरोइंग्स में, तो इसलिए उसका नाम है गुड क्रेडिट रिस्क। यस, देयर इज अ रिस्क एज द इंस्टीट्यूशन हैज लैंडेड टू द फर्म्स, बट स्टिल दैट रिस्क इज गुड इन द सेंस दैट द बैंक इज श्योर अबाउट दैट द बैंक इज गोइंग टू गेट इट्स पेमेंट बैक, दैट्स व्हाई द रिस्क इज बीइंग कॉल्ड एज अ गुड रिस्क, that means that is a honest risk, that is a good risk which represents the honest borrowers. Then there comes the dishonest borrowers or bad credit risk, that means there are large or high chances, high risk, risk is very much high, or you can say more chances of default, कि डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसको हम टर्म यूज कर लेते हैं बैड क्रेडिट रिस्क, दैट मींस द रिस्क दैट हैज बीन टेकन बाय द बैंक while lending funds to any firm or an individual. Now the risk, the quantity of risk, the quantum of risk is high. Why the quantum of risk is high? The reason being that the banks, that the borrowers, there are more chances that the borrower is going to default on the repayment, which we call it as non-performing assets. हम बैड बोरोवर्स होते हैं और जो रीपेमेंट में वो डिफॉल्ट करते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में उनको एनपीएस के नाम से जाना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि जब बैंक को 2 या 3-4 महीना, वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर बैंक को जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स अगर वो रिसीव नहीं होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द बोरोवर, तो
बैंक उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देता है कि दीज आर द एसेट्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग, दैट मीन्स द एसेट्स विच आर नॉट बीइंग रीपेड और whose वैल्यू इज गोइंग टू बी डिफॉल्टेड, यू नो। तो इसलिए क्या है कि जो डिसऑनेस्ट बोरोवर्स हैं उनको ऐसे इंडिकेट किया जाता है। अब सवाल ये है कि इस तरह की ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में किस तरह से कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम कहें, स्पेशली हम बैंक कहेंगे क्योंकि हम बैंक को एज एन एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, आपकी रीडिंग्स में भी दिया एग्जाम्पल, इसलिए हम बैंक को लेकर चल रहे हैं कि वो किस तरह से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करके इस तरह की डिस्टिंक्शन कर सकता है। और वी कैन से हाउ अ बैंक कैन मिनिमाइज इट्स रिस्क वाइल लेंडिंग, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं what factors is this way also, Saksham Gupta, what factors bank should consider or bank may consider, you know, should or may, we can use any word, you know, should consider or may consider for minimizing risk of default, कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को कम करने के लिए बैंक कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर कर सकता है। इज दैट ओके? हेलो हेलो बेटे, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? स्टूडेंट्स भाई, अब तक जो मैंने बोला है, जो समझाया, जो बताया है, क्या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको? किसी को कोई सवाल पूछना है? ये क्लियर है ना कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यस और नो? हेलो, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर जो एक बैंक को कंसीडर करना चाहिए वो कहलाता है क्रेडिट रिपोर्ट्स, दैट इज द क्रेडिट रिपोर्ट्स, कि जो क्रेडिट रिपोर्ट्स होती हैं बैंक उन क्रेडिट रिपोर्ट्स को कंसीडर कर सकता है। अब क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बताता हूँ। क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब है कि जो बोरोवर है, बोरोवर का पास्ट रिकॉर्ड चेक करना, चेकिंग पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बोरोवर, कि जो बोरोवर है उसका पास्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करना, जिसको हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट के नाम पर मांगा जाता है। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं जब लेंडिंग करते हैं, आप जब लोन लेने जाएंगे, आई डोंट नो वेदर एनीबडी ऑफ यू नोज दिस और नॉट, बट लेट me make you aware how the bank finances the different assets that we want to buy. बैंक क्या करता है, जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक की सबसे पहली कंडीशन ये होती है, जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, बोरोइंग के लिए जाते हैं, चाहे आप हाउसिंग लोन लें, चाहे आप कार लोन लें, चाहे आप पर्सनल लोन लें, या किसी भी और तरह का जो भी लोन जिस किसी भी एसेट के लिए आप लेना चाह रहे हैं, अगर वो आप लेते हैं तो उसमें बैंक कैसे प्रोसीड करेगा, दैट वी आर सपोज टू सी। बैंक प्रोसीड करता है कि बैंक कहेगा कि भाई आप अपनी लास्ट 6 मंथ्स की, या कई बार 1 साल की या 2 साल की, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आइए। बैंक स्टेटमेंट मतलब आपकी इनकम को वो चेक करना चाह रहा है। बैंक स्टेटमेंट मतलब आपके इनकम फ्लो को चेक करना चाह रहा है, या आप कह लीजिए एक तरीके से आपका जो क्या कहते हैं कि कैश फ्लो, या आप कह लीजिए क्या कहते हैं कि लिक्विडिटी फ्लो को चेक करना चाह रहा है। कि जब बैंक आपसे स्टेटमेंट मांगता है कि भाई आप हमें अपनी पिछले 6 महीने की, 1 साल की बैंक की स्टेटमेंट दीजिए, तो बैंक की स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा बैंक को कि एक तो उसके पास सेविंग्स कितनी है, ये पता चलेगा कि उसके पास खुद कितने पैसे हैं। दूसरा, बैंक को ये पता चलेगा कि जो इसका बैंक अकाउंट है उसमें कहीं इसने पहले कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ,
कि पहले कहीं से इसने बोरोइंग्स कर रखी हो, क्या उनको इसने रीपेमेंट टाइम से किया है, या कहीं और से बोरो कर रखा हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक्स जगह से भी इसने बोरो कर लिया, कहीं वाई जगह से भी बोरो कर लिया, दो जगह से बोरोइंग कर ली, और जो कि इसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, क्योंकि जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, जो 6 महीने की या 1 साल की, जो भी बैंक अकॉर्डिंगली मंगाते हैं आपसे जब उन्हें लैंडिंग करनी होती है, तो उसमें बैंक ये चेक करना चाहता है कि भाई फंड्स का फ्लो इस पर्सन के पास है या नहीं है। क्योंकि अगर उसकी अर्निंग्स नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल हुआ, अगर उसकी अर्निंग नहीं है, अगर उसका इनकम फ्लो नहीं है, तो वो उसको रीपे कैसे करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि भाई उसको रीपे करने के लिए कम से कम अर्निंग होना जरूरी है इंडिविजुअल के पास। और दूसरी बात जो बैंक चेक करता है उसमें, कि एक तो इनकम का फ्लो चेक किया, दूसरा जो फ्लो बैंक चेक करता है, दूसरा फ्लो बैंक चेक करता है कि भाई इनकम कितनी है। यानी कि मान लीजिए किसी की इनकम है 20,000 रुपए महीना और वो लोन लेना चाह रहा है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का लोन कैसे रिपे कर देगा भाई वो 20,000 रुपए इनकम के होते सोते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हेलो हेलो, जो भी ईएमआई बनेगी 2 करोड़ के लोन पर, तो वो तो ईएमआई ज्यादा बनेगी, या 50 लाख के लोन पर ईएमआई ज्यादा बनेगी, ईएमआई ही बनेगी 45 हजार के आसपास बनेगी 50 लाख के लोन पर। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है। तो जिस इंडिविजुअल की इनकम ही 20,000 रुपए महीना है, उसको 50 लाख रुपए का तो लोन नहीं दे सकता बैंक। मतलब दे सकता है, अगर देगा तो बैंक को रीपेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, जो ईएमआई बनेगी रीपेमेंट की, वो बनेगी लगभग 45-50 हजार के आसपास। और जो मंथली इनकम है किसी इंडिविजुअल की, वो इनकम उसकी है एक तरीके से व्हाट डू यू कॉल इट 20-25 हजार के आसपास। तो वो रीपेमेंट इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये एक तरीके का इंडिकेशन दे देती है बैंक को, जो पासबुक की जो स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट हम कहते हैं, जो इंडिविजुअल बोरो कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये एक तरीके से इंडिकेशन दे देती है लैंडर को, या आप कह लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या बैंक, हमारे केस में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं बैंक को, ये एक इंडिकेशन दे देती है कि भाई जिस इंडिविजुअल को आप लैंड करने जा रहे हो उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटीज कैसी हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्रेडिट रिपोर्ट में बैंक क्या कर सकता है, बैंक कई बार आपसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगता है, इनकम टैक्स आईटीआर जिसको बोलते हैं। आपने एक ये भी देखा होगा कि बैंक यूजुअली आईटीआर भी मांगते हैं। आईटीआर इज नथिंग बट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। अब इनकम टैक्स रिटर्न जब चेक करता है, आईटीआर देखता है, लगभग पिछले 2 या 3 सालों की या 4 सालों की आईटीआर बैंक चेक करता है, तो आईटीआर से पता चलता है कि जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर कितनी है। ये तो आपका इनकम का फ्लो होगा, ये आपकी एक तरीके से एनुअल टर्नओवर को दिखाएगा, एक तरीके से एनुअल इनकम को दिखाएगा। एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये तो उसने मंथली इनकम चेक कर ली यहां से कैश फ्लो से, कि भाई महीने में ऐसा हो सकता है ना, किसी बोरोवर को किसी एक्स महीने में जो है 50,000 रुपए की इनकम हुई हो और वाई महीने में उसको इनकम ना हुई हो, या पिछले 6 महीनों में उसको इनकम ज़्यादा हुई हो, उससे पहले पूरे साल की मंगाएं तो अगले 6 महीने उसको कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं कमाया है। तो उससे सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से इनकम का एस्टिमेशन, जो इंफॉर्मेशन है बैंक को, वो पूरी नहीं मिल पाती है। इसलिए बैंक पिछले 2 या 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किए हैं, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप लोग कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं या अदरवाइज जो भी स्टूडेंट है, ये एक कॉमन नॉलेज है जो प्रिवेल करती है सोसाइटी में इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो इस चीज़ को जानते हैं कि भाई जो ये क्या कहते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी तो उसमें आप एक तरीके से अपनी एनुअल टर्नओवर बताते हो, एनुअल एक्सपेंडिचर बताते हो, और उसमें से जो भी डिडक्शंस आप अपनी सेविंग्स बताते हो, डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया वो सब आप डिस्क्लोज करते हो। और उसके बाद आपकी टैक्सेबल, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आती है,
जिसके बेसिस पर आप टैक्स पे करते हो। तो ये भी एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट भी एक, ये भी एक बैंक का इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पर जो बैंक्स हैं उनको ये पता चल सकता है कि जो बोरोवर है उसकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है, तो उससे उसकी टोटल पेइंग कैपेसिटी एस्टिमेट हो जाती है। और दूसरी चीज जो चेक होगी वो कंसिस्टेंसी भी चेक होती है कि क्या ये कंसिस्टेंटली इतनी ही इनकम कमा रहा है। समझ रहे बात को? जैसे बैंक ने अगर पिछले 3 साल की मांगी है, 4 साल की अगर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगी है, तो 3 या 4 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है कि भाई आप 3 या 4 साल से लगभग उतने उतने पैसे अर्न कर रहे हैं। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह की चीजें हैं जिससे कि लैंड करने से पहले बैंक इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है जिसकी वजह से वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकता है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, ठीक है। अब आती है आगे की बात। अब इसकी लिमिटेशन क्या है क्रेडिट रिपोर्ट की? एक तरीके से लिमिटेशंस देख लीजिए कि भाई क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लेगा पर उसमें क्या क्या समस्या आएंगी। जैसे कि सबसे पहली बात कि हो सकता है कि इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई हो उसमें, यानी कि दिखावा करने के लिए, क्योंकि बैंक ने तो डॉक्यूमेंट देखना है, दिखावा करने के लिए किसी ने बड़ा गबन करने के लिए, या बैड बोरोवर्स जो हैं उसको मालूम है मैंने लोन तो रीपे करना नहीं है, उसने किसी तरह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की वो ज़्यादा अमाउंट की कर दी। बैंक में चाहे उसकी इनकम थी या नहीं थी, वो बैंक में अपने पास 2, 4, 5 लाख रुपए पड़े थे, उससे 20,000 50,000 रुपये या 1 लाख रुपया हर महीने जमा करता रहा, तो जिसकी वजह से उसकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी बन गई, और जो उसने लोन कहीं से और से ले नहीं रखा है तो वो भी उसमें रिकॉर्ड आ गया, और उसने अपनी इनकम टैक्स की जो ITR जो है, ITR भी ज़्यादा अमाउंट की फाइल कर दी है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी बैंक के सामने। तो ये उस तरह की चीज़ें जिससे कि बैंक फिर से घूम फिर के वहीं आ गया, फिर से वो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इज दैट ओके? हेलो हेलो। तो यानी कि जो 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 ये चीज करेगा ये डिसऑनेस्ट बोरोवर करेगा, तो डिसऑनेस्ट बोरोवर करेगा ये सब चीज, ये इस तरह की हरकतें डिसऑनेस्ट बोरोवर करेगा, क्योंकि जो ऑनेस्ट बोरोवर करेगा वो तो अपनी सच्चाई रख देगा सामने उठा के कि भाई ये मेरी इनकम है, ये इतना ही है, बताओ कितना लोन दोगे। दूसरा क्या हो सकता है कि पोटेंशियल गुड बोरोवर्स may not have credit history, or you can say credit reports। अब मान लीजिए बैंक ने कहा कि मुझे 6 महीने की आपकी इनकम स्टेटमेंट चाहिए। अब किसी ने बिजनेस शुरू करना है, अब बिजनेस शुरू करना है तो उसने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए। अब बिजनेस खुलेगा तो 6 महीने होंगे तो वो स्टेटमेंट बनेगी। अब शुरू ही अब करना है तो वो कहाँ से स्टेटमेंट लेकर आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर वो इंडिविजुअल ईमानदार है, भाई पैसा लौटा देगा वो बैंक का ईमानदारी से, पर इंफॉर्मेशन तो बैंक के पास नहीं आएगी, और जो गुड बोरोवर होगा वो बाहर जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट जो ये था, इसके कारण जो बैड बोरोवर है उसकी एंट्री आसान हो गई। यस और नो? अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो जो डिसऑनेस्ट बोरोवर है उससे इसकी एंट्री आसान हो गई, और ये जो पोटेंशियल, ये जो है इस फैक्टर के कारण जो ऑनेस्ट बोरोवर है उसका एग्जिट हो गया,
यानी कि जब उसके पास वो है ही नहीं तो वो बैंक के पास जाएगा ही नहीं पैसा लेने, जबकि वो बंदा, वो इंडिविजुअल इस तरह का है या फर्म इस तरह की है जो बैंक से बोरो भी करेगी, बैंक को टाइम पर इंटरेस्ट भी देगी और टाइम पे रीपेमेंट भी करेगी, बट वो उससे मार्केट से बाहर हो गया क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, या उसने पहले कहीं से लोन नहीं ले रखा, या उसने अभी अभी बिजनेस शुरू किया तो अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न वो आगे फाइल करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो क्रेडिट रिपोर्ट का पॉइंट है ये पॉसिबल है, पर इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ये समझ आया आप लोगों को? नाउ विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर, व्हाट बैंक में डू, what further can be done by a bank. Next point that is being suggested is reputation. Now the question is whose reputation, you know, that means the lender's reputation. कि जो पैसा लैंड करने वाला है उसकी रेपुटेशन कैसी, यानी कि जिस बैंक से कोई इंडिविजुअल बोरोइंग करने वाला है उस बैंक की रेपुटेशन कैसी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ बैंक ऐसे हो सकते हैं जिनकी रेपुटेशन एक टफ बैंक के नाम पर होती है, यानी कि एक तरीके से स्ट्रिक्ट बैंक के नाम पर होती है, कि वो बिना किसी भी पॉइंट पर वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करते हैं as far as the lending is concerned. They want their money back in time. If you are not paying money in time or defaulting on your payments or repayments, then in that case the bank takes a strict action against the individuals who has been defaulting, or you can say the defaulters. कि बैंक क्या करता है, अपनी रेपुटेशन ऐसी बना सकता है या बनाता है, या कुछ बैंकों की ऐसी रेपुटेशन होती है कि भाई ये बैंक तो सख्त बैंक है, कल को अगर हमने इसको रीपे नहीं किया, अगर एक महीने की भी हमारी इंस्टॉलमेंट जंप कर गई तो ये बैंक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है। अरबी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि बैंक की स्ट्रिक्टनेस होने से हो सकता है कि जो बैड बोरोवर्स हैं, जो बैड क्रेडिट रिस्क है, मैं वही टर्म यूज कर रहा हूं, जो बैड क्रेडिट रिस्क है वो कम हो जाए, पर और क्या कहते हैं, जो गुड क्रेडिट रिस्क है वो बढ़ जाए। पर इसके बावजूद, स्ट्रिक्ट होने के बावजूद, ये चीज होने के बावजूद, अब इसके ऊपर फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। क्वेश्चन मार्क ऐसे है कि बैंक अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लेगा बैंक, कि भैया जो चीज आपने मॉर्गेज की हुई है उसको बेच देगा, कह देगा तुम्हारे बेच देता हूं ये सामान, या तो तुम रीपेमेंट करो नहीं तो मैं इसको बेचकर अपने पैसे वसूल लूंगा। बैंक कर सकता है ना इस तरह से। हेलो, या बैंक उसके ऊपर कोई लीगल केस कर दे जिससे कि अब फिर बैंक केस लड़ेगा, वो इंडिविजुअल को सजा भी हो सकती है जो डिफॉल्ट करेगा, अगर उसका डिफॉल्ट साबित हो जाता है तो, ठीक है ना। तो इसमें भी कई बार क्या होता है, जो स्ट्रिक्ट रेपुटेशन है वो स्ट्रिक्ट रेपुटेशन कई बार जो गुड क्रेडिट रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको वो हार्म कर सकता है। उनको हार्म कैसे कर सकता है, देखो, अब बैंक तो क्या देखेगा कि मेरे को मंथली इंस्टॉलमेंट आई या नहीं आई, प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो, ठीक है ना। बैंक ने ये तो चेक नहीं किया कि भाई क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही। ऐसा भी तो हो सकता है कोई ईमानदार ऑनेस्ट बोरोवर हो, पर वो जो ऑनेस्ट बोरोवर है वो बेचारा एक तरीके से अपनी रीपेमेंट नहीं कर पाया, वो ऑनेस्ट है, पे करेगा वो, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो उस मंथ में रीपे नहीं कर पाया या 1-2 मंथ तक वो रीपे नहीं कर पाया। तो क्या उस ऑनेस्ट बोरोवर पे रीपेमेंट का एक्शन चलाना उचित रहेगा, यानी कि जो बैंक का टफ एक्शन है क्या वो लेना उचित रहेगा, यस और नो? हेलो हेलो
स्टूडेंट्स, हेलो, अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये आप लोग सब प्रेजेंट हो ना क्लास में? दाएं बाएं होकर तो नहीं बैठे हो चाय पी रहे और कि टी उधर से ये कर रखा है, म्यूट तो है ही, उधर टीवी चला रखा है म्यूट होके, और जब दर्द दिया तो टीवी को म्यूट किया और इसको ऑन करके यस सर बोल दिया। ये चक्कर तो नहीं चल रहा है? ठीक है, तो ऑनेस्टली आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो क्लास में एक तरीके से एडवर्स सिलेक्शन या लेमन्स प्रॉब्लम क्रिएट ना करने की कोशिश करें। क्लास अगर आप ले रहे हैं तो उसको पूरी तरह से लें। इज दैट ओके? और पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ लें। यस। तो अब हम देखते हैं कि भाई अब जो ऑनेस्ट है वो, अब बैंक को सामने सवाल ये है कि भाई जो ऑनेस्ट बोरोवर है क्या उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें या स्ट्रिक्ट एक्शन ना लें। क्यों? क्योंकि जो ऑनेस्ट बोरोवर है वो तो बेचारा एक तरीके से क्या कहते हैं कि उसकी नीयत तो है दे करने की, पर उसके सर्कमस्टांसेस उसको अलाउ नहीं कर रहे। तो पर हम सिर्फ इस बात को लेकर अगर ऑब्जेक्टिविटी देखें बैंक की, तो ऑब्जेक्टिविटी देखते हुए ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई बैंक की रेपुटेशन अगर टफ है तो वो इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? हेलो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेपुटेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू कॉल इट, कोलैटरल्स। कोलैटरल्स क्या होता है? कोलैटरल्स मीन्स एनीथिंग दैट यू हैव मॉर्टगेजेस और यू हैव प्लेजेस अगेंस्ट विच यू हैव बोरोड द फंड्स। अब कोलैटरल का मतलब हो गया कि एक तरीके से बैंक, कोलैटरल का मतलब क्या हो गया? इट इज़ अ प्रॉपर्टी और अदर assets pledged or mortgaged as security against default on a loan। कि कोलेट्रल का मतलब क्या है? कोलेट्रल एक तरीके से उस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं या उस एसेट को कह रहे हैं जिसको कोई इंडिविजुअल एक तरीके से गिरवी रखता है, प्लेज करता है, मॉर्टगेज करता है अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑन अ लोन। कि भाई अगर मैं लोन नहीं रीपे कर पाया तो आपके पास मेरी ये प्रॉपर्टी या मेरा ये एसेट रखा है जिसको आप बेचकर मेरे जो लोन की नॉन रीपेमेंट है उसको आप कवर अप कर सकें। इज दैट ओके? हेलो, हेलो, ठीक है ना? उसको रीपे कर सकें। अब ये कोलैटरल की बात होगी। अब कोलैटरल में क्या होता है कि अगर डिफॉल्टर उस कोलैटरल, अगर डिफॉल्टर लोन पर क्या कहते हैं कि एक तरीके से वो करता है, क्या करता है उसको, अगर डिफ़ॉल्ट करता है रीपेमेंट पे, तो वो उस कोलेट्रल को सेल ऑफ करके अपनी पेमेंट को रिकवरी कर सकता है बैंक। जैसे मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया, तो होम लोन का ये रूल क्या है कि जब तक होम लोन चलेगा आपकी वो प्रॉपर्टी जो होगी बैंक के पास रहेगी, वो आपके पास नहीं रहेगी, वो प्रॉपर्टी बैंक के नाम पर रहेगी। उसको हायर परचेज बोलते हैं। पहले जब अकाउंट सिखाते थे तो हायर परचेज अकाउंट भी सिखाते थे। आई डोंट नो अब सिखाते नहीं सिखाते। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे ज़रा। अब आता है, ये चैप्टर्स हैं सारे, हायर परचेज, एमलगमेशन, ये सारे हैं अकाउंट्स में चैप्टर। हेलो, हैं? हाँ, तो वो हायर परचेज जो होता है उसमें यही तो दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बाइक खरीदी, बाइक EMI पर ले ली, तो वो हायर परचेज पर होगी कि जब तक उसकी रीपेमेंट पूरी नहीं हो जाती लोन की, तो बाइक जो होती है या कोई भी ऑटोमोबाइल जो आपने ख़रीदा है, जिस किसी ने कार खरीदी है, तो वो उस फाइनेंसिंग फर्म के नाम पर ही होती है जहाँ से आपने उसको फाइनेंस कराया है। जब आप रीपेमेंट कर लेते हो तो वो फाइनेंसिंग कंपनी आपको NOC इशू करती है और उस NOC को लेकर आप उस
व्हीकल के या ऑटोमोबाइल के जो भी ऑनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, वो अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं। इज़ दैट ओके? तो इस तरह से कोलेट्रल्स वर्क करते हैं। तो इस तरह से कोलेट्रल्स रख कर भी बैंक क्या कर सकता है, एक तरीके से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को कुछ हद तक ओवरकम कर सकता है। अब इसके बाद आता है कि कई बार कोलेट्रल पूरी तरह से काम नहीं करता, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। तो इसलिए कोलेट्रल के साथ ही साथ बैंक एक और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकता है जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट इज अ सॉल्यूशन टू द लिमिटेशन ऑफ द कोलेट्रल्स। अब कोलेट्रल्स की लिमिटेशन जो है उसके लिए एक तरीके का सॉल्यूशन का काम करता है डाउन पेमेंट। कैसे? जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदी। हेलो, ठीक है? अब मैंने गाड़ी खरीदी, मान लीजिए गाड़ी खरीदी मैंने 5 लाख की या 10 लाख की, जितने की भी आ गई गाड़ी। अब 10 लाख की गाड़ी खरीदी है और गाड़ी को मैं यूज कर रहा हूं, 6 महीने 2 साल 3 साल से यूज कर रहा हूं, मैंने फाइनेंस करा ली। अब 2 साल 3 साल यूज की गाड़ी, अब मेरी जेब से तो एक भी पैसा नहीं गया, क्योंकि सारा का सारा पैसा गाड़ी बैंक के नाम है, पैसा बैंक ने दिया। अब गाड़ी पर तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ठीक है ना, कि गाड़ी पर तो क्या लग रहा है, एक तरीके का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उसकी वैल्यू तो घट रही है। अब 3 साल 4 साल मैंने गाड़ी चलाई, 4 साल तक तो मैंने जो पेमेंट थी, रीपेमेंट थी, वो की। उसके बाद मैंने रीपेमेंट करनी बंद कर दी। तो बैंक एट लास्ट बैंक अब मैक्सिममली क्या कर सकता है, बैंक भाई उस गाड़ी को ले जाएगा, उस गाड़ी को बेच देगा, बेच कर भी उसकी पूरी रीपेमेंट नहीं होनी बैंक की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि भाई बंदा कह दे ठीक है भाई आप ले जाओ गाड़ी, यही तो करोगे आप, कोई मुझे फांसी की सजा थोड़ी दे दोगे। तो जो डिफॉल्ट करने वाला है वो उसको एक तरीके से कह देगा ले जाओ गाड़ी भाई, तो वो गाड़ी ले गए वो, तो उसमें फिर उस डिफॉल्टर का तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, उसने तो अच्छी भली जो बैंक की गाड़ी थी, बैंक का पैसा भी यूज किया और बैंक की गाड़ी भी यूज की, 4-5 महीने 4-5 साल या 2 साल 4 साल जितने भी टाइम तक उसने यूज किया। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, ठीक है? तो अब सवाल है ये सब किया, तो अब उसमें बैंक क्या करता है, तो बैंक को एक तरीके से, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको एक तरीके से सिर्फ कोलेट्रल से उसको संतुष्टि नहीं होती, पूरी एश्योरेंस नहीं मिलती कि डिफॉल्ट के केस में जो रिस्क मैंने उठाया है, मेरा वो रिस्क कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डाउन पेमेंट की करते हैं। यानी कि कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो या जिसको लोन लेकर आप परचेज करने जा रहे हो, उस एसेट का 100% कभी भी बैंक क्या नहीं करता है, लैंडिंग नहीं करता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो 100% लैंडिंग नहीं करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है ना? अब 100% लैंडिंग नहीं करता है, तो वो क्या करता है कि जो बोरोवर है उसका इंटरेस्ट बना रहे रीपेमेंट में, तो वो कोलेट्रल तो लेता ही लेता है, कोलेट्रल के साथ साथ वो डाउन पेमेंट की भी डिमांड करता है। जैसे बैंक क्या कहेगा बैंक कहेगा कि आपको अगर 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा जो एसेट आप खरीदना चाह रहे हो, जैसे मान लो कोई अगर कार खरीदना चाह रहा है एसेट के नाम पर, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो कार खरीदना चाह रहा है, तो बैंक कहेगा कि ठीक है भाई 10 लाख रुपए की कार है, आपकी इनकम स्टेटमेंट हमने देख ली, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हमने देख ली, सारी चीज़ें देख ली, कार भी हमारे नाम पर रहेगी, ये चीज़ भी हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैंक कहेगा पर हम सिर्फ जो फाइनेंस करेंगे वो 80% करेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए जो पेमेंट है इस कार के लिए वो आपको करनी पड़ेगी, और रिमेनिंग जो 8 लाख रुपीज है दैट विल बी लैंड बाय द बैंक, लैंड करेगा या बैंक उन 8 लाख रुपयों को पे करेगा। तो अब जब ये कार खरीद ली किसी भी इंडिविजुअल ने, अब ये कार ले ली, तो अब इस कार में सिर्फ बैंक का पैसा नहीं लगा हुआ है, इस कार में उस इंडिविजुअल की पर्सनल अमाउंट भी लगा हुआ है, पर्सनल एक तरीके के
एक तरीके से कैपिटल भी उसने इन्वेस्ट कर रखी है, पूरी बैंक की नहीं है। कल को अगर ये डिफॉल्ट करता है, जो भी ये इंडिविजुअल है जिसने इसको कार को खरीदा है मॉर्गेज करके या एक तरीके से बोरोइंग्स करके उस एसेट को खरीदा है, अब उसको उसका इंटरेस्ट यहाँ स्टक हो गया। इंटरेस्ट क्या स्टक हो गया कि अब उसको क्या लगेगा कि अगर बैंक मेरी कार उठा के ले जाएगा तो जो 2 लाख रुपए मैंने दिए थे मेरे, तो वो भी चले गए। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? हेलो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो डिफॉल्ट करने की जो विलिंगनेस है किसी भी इंडिविजुअल की, या डिफॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अरे भी क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पर सवाल ये है, क्या ये सब जो सॉल्यूशंस हमने अब तक डिस्कस किए हैं, क्या ये सब सॉल्यूशंस एडॉप्ट होने के बाद भी, क्या ये सारे सॉल्यूशंस करने के बाद भी क्या डिफॉल्ट्स को रोका जा सकता है? क्या डिफॉल्ट्स नहीं हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल सिस्टम में या फाइनेंशियल मार्केट में, या हो रहे हैं? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी नाउ। अब देखो, बैंक क्या करता है, ये सारी एहतियात बरतता है, फिर भी डिफॉल्ट होते हैं, फिर भी लोग बैंकों का पैसा लेकर जाते हैं। अब जैसे नीरव मोदी या जिस तरह के ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मेहुल चौकसी जो थे, और एक और था ये क्या नाम है, किंगफिशर का मालिक, क्या नाम है उसका, माल्या, हाँ विजय माल्या जो है, जो ये लोग जो पैसा लेकर भागे हैं बैंक का, या इन्होंने डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट तो हो गया ना, जबकि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी ज़्यादा है, इनके एसेट्स भी ज़्यादा थे, इन्होंने कोलेट्रल भी कुछ ना कुछ किया होगा, इनके पास जो इनकम सोर्स था वो भी था, इनके इनकम टैक्स रिटर्न भी थे। जितनी ये चीज़ें हमने किया, ये सारी कंडीशंस को वो फुलफिल करते होंगे, बट स्टिल दे हैव डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट। यस और नो? हेलो हेलो, ठीक है ना? तो इसलिए क्या है कि उसके बाद भी होते हैं, बट बात वो है, फिर भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करके, इस तरह के फैक्टर्स को कंसीडर करके, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को कंसीडर करके, जो लोन्स हैं, जो लोन्स पर जो डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जा सकता है। उसको कहीं ना कहीं क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। इज दैट ओके? हेलो हेलो, इज दैट ओके? उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जा सकता है। अब आता है कि ये तो हुई बैंक की बात, अब आता है कि अदर फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे होता है, या अदर फाइनेंशियल मार्केट में किस किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इज दैट ओके? अब ये तो हमने बैंक का एग्जांपल लिया, अब हम एग्जांपल लेंगे इन केस ऑफ अदर फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है भाई? हेलो, अब देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट। अब बैंक के अलावा अदर फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी होती हैं? जैसे आप देख लीजिए, स्टॉक मार्केट है, आप देख लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में क्या आ गया? स्टॉक मार्केट में दो चीजें आ गई, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जिसको आप बॉन्ड्स भी बोलते हो, और इंश्योरेंस सेक्टर में तो इंश्योरेंस ही आ गया, इंश्योरेंस आ गया। अब जो ये फाइनेंशियल मार्केट है, इनमें भी एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, इनमें भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। कैसे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है? जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए हम शेयर्स लेते हैं, जिसको हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, शेयर मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इक्विटी मार्केट है, तो इक्विटी मार्केट में जिस कंपनी के शेयर्स हैं, उस कंपनी को बेटर इंफॉर्मेशन है अपने बारे में तुलना में हमारी, यस और नो भाई? वो जो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है या शेयर मार्केट से फंड्स
रेज करना चाह रही है या इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करना चाह रही है शेयर मार्केट के थ्रू, तो उस फर्म को तो ज्यादा मालूम है कि भाई उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। जो भी कोई फर्म होगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, और उसके एसेट्स की वर्थ कितनी है, वर्थ क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, और उसकी नेटवर्थ क्या है, एटसेट्रा। तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो फर्म अपने स्टॉक्स को मार्केट में सेल कर रही है, जो फर्म्स अपने स्टॉक्स को मार्केट में बेचने जा रही है या इंट्रोड्यूस करने जा रही है या इक्विटी मार्केट से फंड्स रेज करने जा रही है, उस फर्म को ज्यादा इंफॉर्मेशन है अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में, अपनी बैलेंस शीट के बारे में, और टोटल मिलाकर कहीं तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के बारे में उस फर्म को ज्यादा इंफॉर्मेशन है तुलना में उसकी रिलेटिवली द इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दोज फर्म्स, इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ दोज फर्म्स। यस और नो? हेलो हेलो। तो जो लेमन्स प्रॉब्लम है या जो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है या इन टोटलिटी हम कहें जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, वो इन फाइनेंशियल मार्केट में भी एग्जिस्ट करती है। यस और नो? तो अब ये है कि भाई क्या कहते हैं कि अब हमें ये देखना है कि इनमें जो ये एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, उस एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब कैसे दूर कर सकते हैं ये जानने से पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे कि ऐसे फैक्ट्स की मैं आपको लिस्ट दूंगा, एक तरीके से लिस्टिंग करूंगा, जिन फैक्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो चांसेस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम किसी ना किसी तरह से ओवरकम कर पाएंगे। इज दैट ओके? हेलो हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं फिर पहले कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूँ, लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, और फिर हम जब इनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, इनको प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे कि कौन से मार्केट में किस तरह की एडवर्स सिलेक्शन या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किस तरह के क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए हैं, तो फिर हम देखेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन किस तरह के फैक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है या एक तरीके से उस फैक्ट को जस्टिफाई करता है। इज दैट ओके? तो मैं लिख रहा हूं लिस्ट ऑफ फैक्ट्स टू बी कंसीडर्ड। सबसे पहला फैक्ट जो कंसीडर किया जाना है वो है कि stocks are not the most important source of external financing. Let me write them first, then I'll discuss each and every with all of you so that you'll be able to get it, the next one is the marketable securities are not the primary source of finance. The next one is indirect
finance is more important than direct finance. The next one is banks are the most important source of external finance. Yeah, external finance, or you can say the funds. You can write funds also. Well, the next one is the financial system is heavily regulated. The next one is the only large, well-established firms have access to securities market. Next fact is collateral is prevalent in debt market. Okay. Next is debt contracts have numerous restrictive covenants. ठीक है, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब क्योंकि हमें ये फाइनेंशियल मार्केट पढ़नी है, तो इस फाइनेंशियल मार्केट में हम 3 तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। अब वो मैं आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कि उनको हम किस तरह से, और ये उन सभी मार्केट्स को कवर करते हैं, सारे फैक्ट्स उन सभी मार्केट्स के बातों को कवर करते हैं ये सारे फैक्ट्स। क्या है, एक तो जो क्या कहते हैं कि एडवर्स सिलेक्शन है, एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करेंगे ये। दूसरा, एक तरीके से एक प्रॉब्लम होती है मॉरल हजार्ड। अब मॉरल हजार्ड प्रॉब्लम क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। मॉरल हजार्ड, या इसको आप बोल सकते हो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम अभी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी जो हम पॉइंट ये डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी रिगार्ड में। ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम किसमें, इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। एक हमने पढ़ी है मॉरल हजार्ड, कि मॉरल हजार्ड हो सकता है किसमें, डेट मार्केट में। यानी कि जो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम जो है, जो एडवर्स सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है, वो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम, ये सारी ही ये जो तीनों प्रॉब्लम मैंने लिखी हैं,
ये हैं बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये सारी बिकॉज ऑफ क्या है? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है, मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम आती है। और मॉरल हजार्ड की जो प्रॉब्लम है वो इक्विटी मार्केट में भी आती है और डेट मार्केट में भी आती है, जिसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। यानी कि जो मॉरल हजार्ड प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना। तो वो कैसे कैसे होगी, उनको कैसे ओवरकम करना है, एडवर्स सिलेक्शन को कैसे ओवरकम करना है फाइनेंशियल मार्केट में, तो उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो ये सारे एडवर्स सिलेक्शन ये सब हम पढ़ेंगे, उनसे इस तरह के ये जितने भी फैक्ट्स हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी आर दे, लेट मी पॉइंट them out. I think there are 8 facts. There are 8 facts. 1 2 3 4 5 6 7 8 कि जब हमने ये पारस, why you have joined so late? Yes, Paras, why you have joined so late in the class? हाँ पारस, आप इतनी लेट ज्वाइन क्यों किया आपने क्लास में? क्या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था आपके पास? नहीं, ऑन कैसे नहीं था? उसमें आपकी वैलिडिटी खत्म हो रखी थी क्या? कहाँ रहते हो आप जो लाइट की इतनी, दिल्ली में इतनी लाइट की प्रॉब्लम है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हैं, कहाँ रहते हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हो। कहाँ रहते हो? गाजियाबाद? अच्छा, गाजियाबाद में हो आप। चलो कोई नहीं, अपने मोबाइल में थोड़ा डेटा वेटा की करा लो बेटे प्रॉब्लम ठीक, ताकि कनेक्शन की प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो एक रेगुलर अब ऑनलाइन ही चलेंगी लगभग इस सेमेस्टर में क्लासेस। अब तक का जो स्टेटस है उसके हिसाब से मुझे तो लगता नहीं कि क्लासेस जो होंगी वो फेस टू फेस या क्लासरूम क्लासेस हो पाएंगी जैसे होती थी। तो मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई ये सेमेस्टर ऐसे चलेगा, तो इसमें सभी बच्चे अपना अपना इंतज़ाम कर लें। अब जैसे मेरे घर में भी है, वो तो मैं समझता हूँ कि डेटा की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, नेट वाईफाई नहीं भी चलता है, कई बार कनेक्शन नहीं भी आता है। बट फिर भी कोशिश रखो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है क्लास होती है तो पहले से हम थोड़ा सा प्रोविज़न करके रखें। वंस इन अ ब्लू मून को तो हम एक तरीके से नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर रिपीटेडली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अब मैं कोई ऐसा तो रिकॉर्ड मेंटेन कर नहीं रहा हूँ कि किसके साथ कितनी बार हो चुका है, ठीक है। बट ये है, हम अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहे इन चीज़ों को लेकर ना, ध्यान रखें। हाँ, so there are 8 facts that comes out when we deal with these problems and when we discuss these problems in the respective markets, कि जैसे एडवर्स सिलेक्शन किया, मॉरल हजार्ड किया, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है, या डेप्ट मार्केट की जो प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स को जब हम ओवरकम करते हैं, या इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो हम सॉल्यूशंस बताते हैं, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उन सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह की क्या कहते हैं कि उन सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह की जो समस्या है, किस तरह की जो क्या कहते हैं कि फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट जो सामने आता है इन सब को डिस्कस करने के बाद, अब ये मैं फैक्ट पहले, अब सवाल ये है भाई मैं ये फैक्ट पहले क्यों बता रहा हूँ, पहले ये क्यों नहीं बताया मैंने, ठीक है ना। तो बेटे फैक्ट्स को मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम ये इनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा देखो इस सॉल्यूशन से ये फैक्ट इस्टेब्लिश होता है।
ताकि हम उसको एक तरीके से रिकनेक्ट कर पाएंगे कि ये होने से ये फैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है या ये सॉल्यूशन इस फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रहा है। इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले फैक्ट्स बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस पर और इन प्रॉब्लम्स पर स्विच करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि स्टॉक मार्केट्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। नाउ एक्सटर्नल फाइनेंस मींस जो भी कोई फर्म फाइनेंस करना चाहती है, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी कंपनी है, या मान लीजिए मेरी कंपनी है, तो मैं अगर एक तरीके से पैसा लगाना चाह रहा हूं अपनी फर्म को एक्सपेंड करने के लिए, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि पैसा मेरा खुद का हो, खुद की मैं अपनी कैपिटल हूं, उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, यस और नो? खुद के मेरे पास पैसे, कुछ सेविंग्स पड़ी हैं या कोई भी एसेट हमारे पास है, उसे रीसेल करके मैं पैसा गेन कर लूं और दैट कैन बी यूज फर्दर, यस और नो? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। बट दूसरा तरीका यह है मैं कहीं से उधार लूं। तो जब मैं कहीं से उधार लूंगा, चाहे किसी फ्रेंड से उधार लूं, चाहे मैं अपने किसी रिलेटिव से पैसा उधार लूं, या मान लीजिए बोरोइंग्स करूं, या मैं बैंक से बोरोइंग करूं, या मैं स्टॉक मार्केट से बोरोइंग करूं, ये सारे के सारे ही एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग कहलाएंगे, बिकॉज दे आर एक्सटर्नल टू द इन्वेस्टर्स इन इन्वेस्टर्स फर्म, कि जो इन्वेस्टर की फर्म है उसके रिलेटिवली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है, ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल सोर्सेज नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये फैक्ट इस्टेब्लिश होता है कि जो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स तो आप बैंक से भी ले सकते हो, आप एक्सटर्नल सोर्स डिबेंचर से भी ले सकते हो, वो आप एक्सटर्नल सोर्स अपने किसी रिलेटिव से भी बोरो कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये फैक्ट इस्टेब्लिश होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स चल रही हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रन हो रहे हैं, उनमें जो स्टॉक है सिर्फ वही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है, अदर सोर्सेज से भी फर्म्स फाइनेंस कर रही हैं। अब अदर सोर्सेज से भी फाइनेंसिंग क्यों कर रही हैं या अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग पे भी क्यों जाती हैं फर्म्स, इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इनके सॉल्यूशंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया है फैक्ट्स का? हेलो, ठीक है। अब आता है सेकंड फैक्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। कि भाई जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज का मतलब वही है शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सिक्योरिटीज से मतलब क्या होता है? शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मार्केटेबल मतलब जिनको रीसेल और रीपरचेज किया जा सके। तो दूसरा फैक्ट जो इस्टेब्लिश होता है इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढते वक्त या इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करते वक्त या इन मार्केट्स का, इन प्रॉब्लम्स का फाइनेंस मार्केट में एनालिसिस करते वक्त, वो ये फैक्ट सामने आता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले मार्केटेबल सिक्योरिटीज के थ्रू फाइनेंस नहीं करना चाहेगी फर्म्स। There are other sources that will be explored by the firms. That means marketable securities will come to a second or third or fourth position, fourth option. यानी कि मान लीजिए मेरी फर्म है और मुझे लोन चाहिए या मुझे पैसा कलेक्ट करना है, तो सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि भाई जब आपको पैसा कलेक्ट करना है या लोन आपको चाहिए या फंड्स की ज़रूरत है जहाँ फंड्स रेज करने हैं, तो सबसे पहले ही इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं कि शेयर डिबेंचर्स के थ्रू ही नहीं करता है परचेजिंग, शेयर डिबेंचर्स के सोर्स पे भी स्विच करता है, पर वो इसका प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो इसका सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी मतलब अदर देन द प्राइमरी, यानी कि पहले वो कोशिश करती है फर्म कि अपने पास से रिसोर्सेज जुटा ले, जो इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से भी जानते हो आप लोग, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं फर्म के, कि उनको वो री इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्राइमरी सोर्स नहीं होता, सेकेंडरी सोर्स होता है, टर्शरी सोर्स होता है। इससे पहले वो जो अदर सोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करती है फर्म। तो एक फैक्ट ये सामने आता है
तो अब ये फैक्ट इस्टेब्लिश कब करेंगे हम, जब हम इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे, देखो भाई ये सेकंड फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रही है ये जो सॉल्यूशन है वो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्ट फाइनेंस। यस, आप में से कौन मुझे बताएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है? मैंने समझाया हुआ आप लोगों को, मैंने क्लास में आप लोगों के साथ ये हमने डिस्कस किया था पीछे क्लासेस में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बताइए, आप में से कौन बताएगा मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंस में डिफरेंस? यस, एक मिनट, कौन बता रहा है? पहले अपना नाम अनाउंस कीजिए। लालू प्रसाद, हाँ लालू प्रसाद बताइए। अच्छा अच्छा, अच्छा, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि डायरेक्ट फाइनेंस में जो होता है वो इंडिविजुअल डायरेक्टली पैसा किसी से, जिससे उधार ले रहा है उसी से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यानी कि लेंडर और बोरोवर, या आप कह लीजिए सेवर और इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इसके एग्जांपल दे सकते हो डायरेक्ट फाइनेंस के? लालू प्रसाद के अलावा कोई और दे सकता है एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस? यस, apart from Lalu Prasad, is there any other student who will be able to give me the examples of the direct finance? Yes. Who is speaking? Sandeep Negi. All right. Issue of shares. All right. So issue of share means you want to say that issue of shares in the primary market, not in the secondary market. प्राइमरी मार्केट में ही होगा ना, क्योंकि दोनों में तो फिर वो स्टॉक मार्केट के थ्रू जाएगा। उसमें तो प्राइमरी जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। तो प्राइमरी मार्केट में वो डायरेक्ट हो जाएगा कि जो फर्म है वो डायरेक्टली सेल कर रही है अपने शेयर्स, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो फर्म से बाय कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल कोई और स्टूडेंट देना चाहेगा डायरेक्ट फाइनेंस का? यस, अर्जव जैन। हेलो अर्जव जैन, आर यू लिसनिंग? हेलो विशाल आनंद, let me check who is there, who is not, Arjav Jain, are you listening? Vishal Anand, yes Vishal Anand, speak. Example दो डायरेक्ट फाइनेंस का apart from stock market, IPOs. विशाल, एग्जाम्पल दीजिए इसका, डायरेक्ट फाइनेंस का एग्जाम्पल दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, उसका एग्जाम्पल दीजिए ना। डायरेक्ट इन, अरे भाई वो तो पता चल गया ना, डायरेक्ट वर्ड है, उसका एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट फाइनेंस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जब आप अपने किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से डायरेक्टली बोरो करते हो, उधार लेते हो, ये एग्जाम्पल हो गया सिंपल। या आपने जो प्राइवेट लेंडर्स होंगे देखे होंगे कि जो प्राइवेटली आस पड़ोस, हाँ डायरेक्ट लेते हैं, तो आपने कई प्राइवेट मनी लेंडर्स देखे होंगे जो क्या करते हैं कि वो अपने ब्याज बट्टे का काम करते हैं और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को ब्याज पर पैसा देते हैं। देखा है ना ऐसा? तो वो भी एक तरीके का डायरेक्ट फाइनेंस का ही एग्जाम्पल है। इज दैट ओके? हाँ, अब हाँ पारस बोलो। हाँ बोलो बेटे, क्या कह रहे हो पारस? मेरे को समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट व्हाट यू हैव सेड। हाँ, कैपिटल ऑफ प्रोमोटर्स, तो वो तो इंटरनल सोर्स हम उसको कह देंगे ना, कि भाई वो जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, ठीक है ना। तो वो तो प्रोमोटर्स हैं। अब जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही अपने बिजनेस की फंडिंग कर रहे हो, तो उसको आप डायरेक्ट नहीं, उसको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कह देंगे।
डायरेक्ट फाइनेंस उसका मतलब है जब आप किसी से बोरोइंग्स कर रहे हो कहीं और से, ठीक है ना, तो यही मतलब है। हाँ, वो ओनर नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस बात है ना, कि अगर मैं खुद के पैसे लगा रहा हूं बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में, तो उस केस में तो ये हुआ कि भाई वो तो मेरा ही पैसा है, मैं उसको लगा रहा हूं, किसी से उधार थोड़ी ले रहा हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब हम किसी से उधार मांग रहे हैं भाई पैसा, कि हमारे पास पैसा नहीं है, कोई हमें पैसा दे दे, ठीक है। चलिए अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूं, दिव्या मल्होत्रा, दिया मल्होत्रा, यस, वेयर इज दिया मल्होत्रा। हाँ बेटे, एग्जाम्पल दो, इनडायरेक्ट फाइनेंस का एग्जाम्पल दो आप, और पहले ये बताओ इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दो। दिया मल्होत्रा, यस यस, दिया मल्होत्रा स्पीक। अच्छा, गुड। यस, फर्दर, आगे, हेलो। नहीं, एग्जाम्पल हो गया इनडायरेक्ट का, मैंने कहा इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, ये तो बताया नहीं ना आपने। सवाल ये था ना कि हम्म 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 चलिए ठीक है, जो बोला आपने, किसी और से पूछते हैं। ये एक स्टूडेंट है पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र, आर यू लिसनिंग? पुष्पेंद्र, क्या आप क्लास में हैं अभी? पुष्पेंद्र, इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है बताओ, और उसका एग्जाम्पल दो। यस। हम्म हाँ, यानी कि किसी फाइनेंस, देखिए आप लोगों को ऐसे बोलना चाहिए, अब जैसे बैंक से, बैंक उधार देने वाला है, बोरोवर बैंक से ले रहा है, तो वो भी तो एक तरीके का डायरेक्ट ही हो गया, पर हम इसको इनडायरेक्ट वर्ड कह रहे हैं। इनडायरेक्ट वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सेविंग करने वाला है, इस चीज को बोलना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो सेव करने वाला है वो अलग है, और जो बोरो करने वाला है वो अलग है, और उनके बीच में एक इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो सेवर्स का पैसा बोरोवर्स को लैंड कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली हम ही लैंड कर रहे हैं, सेवर्स ही लैंड कर रहे हैं, जिसको क्रेडिट क्रिएशन आप लोगों ने पढ़ा है, जिसका, हेलो, जिसके बारे में आपने पढ़ा है ना, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है ना, तो उसको हम इनडायरेक्ट फाइनेंस कहते हैं। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस। गुड, शाबाश, आप लोगों ने जवाब दिया। तो तीसरा फैक्ट जो सामने आता है वो ये आता है कि जो इनडायरेक्ट फाइनेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? डायरेक्ट फाइनेंस से, कि लोग या फर्म्स या इंडिविजुअल्स डायरेक्ट फाइनेंस में ज्यादा विश्वास नहीं करते, इनडायरेक्ट फाइनेंस में, यानी किसी न किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू ही वो फंडिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है, बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस और फंड्स, कि बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, यानी कि ज्यादातर जो फर्म्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो बोरोइंग करते हैं वो इनडायरेक्ट तो करते हैं, पर इनडायरेक्ट में भी किनसे करते हैं? बैंक्स के थ्रू वो ज्यादा फाइनेंस करते हैं, सोर्सेस कलेक्ट करते हैं, फंड्स को बोरोइंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इज दैट ओके? उसके बाद आता है फिफ्थ फैक्ट, फाइनेंशियल सिस्टम इज हैवीली रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को, यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जांपल। जैसे जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को या बैंकिंग सेक्टर को या मनी मार्केट को आप सिंपल कहें तो आरबीआई रेगुलेट करता है। रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। जो स्टॉक मार्केट है, जिसको आप सिक्योरिटीज मार्केट कह रहे हो, उसको रेगुलेट करता है सेबी,
सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसी तरह से जो इंश्योरेंस मार्केट है उसमें क्या है, IRDA, आई थिंक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या नेक्स्ट फैक्ट सामने आता है जब हम इनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जब इन प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है वो हैविली रेगुलेटेड है, यानी कि उनके लिए रेगुलेटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है। ये फैक्ट इस्टेब्लिश होगा हमारे सामने जब हम इनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट है, ओनली लार्ज वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैव एक्सेस टू सिक्योरिटीज मार्केट, कि जो ये स्टॉक मार्केट से या मार्केटेबल सिक्योरिटीज के थ्रू जो फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ ऐसी फर्म्स हैं जो लार्ज, जिनके ऑपरेशंस है और जो वेल इस्टेब्लिश्ड है, वही फर्म्स जो है हमारे कंपनी लॉज के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज मार्केट से फंड्स को बोरो कर सकती हैं, सिक्योरिटीज मार्केट से फंड्स अरेंज कर सकती हैं। आपको या मेरे को दुकान खोलनी है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए हम सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए हम स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते हैं। जो लार्ज फर्म्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स हैं, वही सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट से फंड्स रेज कर सकते हैं या कर पाते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है, कोलेट्रल इज प्रेवलेंट इन डेट मार्केट, कि इवन जब डेट मार्केट है, यानी कि जब आप पैसा उधार ले रहे हो, चाहे आप डिबेंचर्स की फॉर्म में ले रहे हो, चाहे आप बॉन्ड की फॉर्म में ले रहे हो, चाहे आप अदरवाइज किसी से उधार ले रहे हो, तो उसमें कोलेट्रल प्रेवलेंट है कि हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ बोरोवर को कोलेट्रल रखना पड़ता है, कोई ना कोई एसेट अपना गिरवी रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैव न्यूमरस रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स। कॉवेनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रूल्स और यू कैन से एस्टैब्लिशमेंट, और एक तरीके से कह लीजिए एग्रीमेंट। कॉवेनेंट का मतलब है एक तरीके का एग्रीमेंट, कि जो डेट मार्केट होती है उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, न्यूमरस एग्रीमेंट्स होते हैं, और उन एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। जो नेचर में रिस्ट्रिक्टिव होने का मतलब जो डिफॉल्ट को करने से रोकते हैं, इस तरह के कॉवेनेंट्स, इस तरह के एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसमें? डेट कॉन्ट्रैक्ट्स में या डेट मार्केट में। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो इस्टेब्लिश होंगे जब हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। तो क्या जो अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, क्या इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, हाँ बताओ जरा, कोई सवाल है तो पूछो क्या सवाल है भाई? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप? जो कौन होते हैं? फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ बोलो, आपको अपना क्या करना है? हाँ, हम्म हम्म, हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म, हाँ उसको इनडायरेक्ट बोल देंगे। तो उसमें जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो यही तो कर रही हैं। एग्जाम्पल जो मैं आपको दिया था पीछे क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं कंपनीज वो यही तो करती हैं। आगे हम और डिस्कस कर लेंगे इसको। तो तुम ठीक कह रहे हो, वो इनडायरेक्ट सोर्स ही होता है, पर उसमें वो ब्रोकर इनडायरेक्ट नहीं हुआ, वो जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड्स हम खरीद रहे हैं। ब्रोकर तो सिर्फ एक वो इंडिविजुअल हो गया जो हमें बताता है कि आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। ब्रोकर अपने आपे में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कल को जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड उस ब्रोकर ने हमें सेल किया है, वो ब्रोकर तो उस कंपनी को छोड़ सकता है ना, वो तो नौकरी छोड़ के जा सकता है, या वो तो अपनी जो उसकी ब्रोकरशिप है या उसके साथ कांटेक्ट है वो उनका हो सकता है
एग्रीमेंट चल रहा है, हो सकता है बंद हो जाए। पर हमारा अगर उस किसी कंपनी का हमने म्यूचुअल फंड ले लिया तो वो म्यूचुअल फंड तो हमने खरीद ही लिया ना उस कंपनी का, ठीक है। तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके थ्रू जो वो फर्म्स जिनके एसेट्स सिक्योरिटीज में वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए वो इनडायरेक्ट फाइनेंस हो गया। ब्रोकर यहाँ पर एक इनडायरेक्ट फाइनेंस नहीं होगा उसमें वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके हम म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं वो एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम कर रही है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का, ना कि ब्रोकर। इज दैट ओके? ब्रोकर इज जस्ट एन एजेंट ऑफ दैट कंपनी। तो जब हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, मैंने लिखवाया है ना प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, देखो ये लिखा है ना पे मॉरल हजार्ड और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो ये जब हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे देयर यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी ऑन द इशू कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, यू नो। ठीक है, किसी और ने कोई सवाल पूछना है? भाई आज जो हमने डिस्कस किया है जितना, इससे रिलेटेड किसी और ने कोई सवाल पूछना है स्टूडेंट ने? यस प्लीज। हाँ, नाम बताओ, कौन बोल रहा है? लालू प्रसाद। हाँ बोलो लालू। हाँ 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 ठीक है। देखो लालू प्रसाद, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका सवाल क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ लालू प्रसाद का सवाल, अगर मैं सब सही समझाऊँ तो बाकी सब स्टूडेंट भी सुन लेंगे। देखो लालू प्रसाद ने सवाल किया कि सर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीद लिए और उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसी और कंपनी के या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा उस म्यूचुअल फंड का, और वो जिस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो कंपनी डूब गई एक तरीके से। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि उस कंपनी को लॉस हो गया, कुछ भी हो गया। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना। तो लालू प्रसाद का सवाल है कि क्या जिस कंपनी में वो पैसा लगाया था और जो वो कंपनी डूब गई, क्या जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमें प्रॉफिट देगी या लॉस देगी? देखो लालू प्रसाद, बड़े सिंपल सी बात है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी जेब से रिटर्न नहीं देगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपने जो म्यूचुअल फंड्स पे आप टीवी देखिए, टीवी देखो, हमारी जो सराउंडिंग्स है वो हमें बहुत ज़्यादा एजुकेट करती है अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक है सराउंडिंग्स को लेकर। टीवी पर ऐड आती है म्यूचुअल फंड्स की कि भाई बहुत बढ़िया, या इस तरह से करके एक ऐड आती है ना म्यूचुअल फंड की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, कि बढ़िया है ना, ऐसा करके वो एक बात बोलते हैं। पर जब वो ऐड खत्म होने वाली होती है तो उसमें एक बड़ी तेजी से लाइन बोली जाती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस और नो? तो उस एड में जो वो लाइन बोली जा रही है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दैट इज व्हाट मींस दैट इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द स्फेयर्स वेयर दे हैव बीन, द फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड, then only that much returns is being promised to you. If there is a loss, then you are supposed to bear the loss. Is that okay? पर होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं, काम करते हैं, तो वो अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। वो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स को कि एक जगह अगर लॉस हो रहा होता है दूसरी जगह प्रॉफिट हो रहा होता है, तो जिसके कारण वो लॉस कंपनसेट हो जाता है, पर फिर भी रिस्क तो बना ही हुआ है। तो इसलिए जो म्यूचुअल फंड्स की जो टीवी पर ऐड आती हैं तो आप उनको बड़ा ध्यान से सुनिए और देखिए। उस ऐड में वो क्लियरली कहते हैं, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एज द म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन वो बोलते हैं ऐड में लास्ट में कि भाई बिफोर इन्वेस्टिंग यू आर सपोज टू रीड द डॉक्यूमेंट्स क्लियरली एज द म्यूचुअल फंड्स और द मार्केट इज सब्जेक्ट टू, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Is that okay? I think I have answered your question. ठीक है, तो अगर लॉस होगा तो लॉस होगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। That is the answer. Is there any other query, any other question? Anybody else wants to ask anything? Yes? Hello? तो चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।